Hello. Welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to crack open some practice summary questions. ठीक है? तो चलो, without any delay, let's dive in, see what the passage. No, my bad, not the passage. What the summary questions are all about. As usual, I have dropped the timestamps in the description box for the respective questions that we are going to solve. If I'm not wrong, there are going to be about 5 or 6 questions in this video. You can just go to the timestamps, check out the questions, jot down the answers, then come back or go to each particular question to check what the answer is. Okay. Taking a look at the first question, the first paragraph, relatively easy question. बहुत छोटा सा narrative है. What is given to us that the word priority actually it was singular, originally coined in the 1400s. We are talking about the 15th century here, about 500 years ago. However, one change happened that in the 1900s, 20th century, we made the word, turned that word into a plural. And what we now have in the hand is the word priorities. And regarding this, author's opinion is very straightforward. He is not holding back his displeasure at it. He has called this move as completely illogical. ऑथर कहता है कि भाई ये कैसी घटिया बात हो गई. हाउ कैन देयर बी मल्टीपल फर्स्ट थिंग्स. प्रायोरिटी का मीनिंग होता है टॉप मोस्ट, टॉप ऑफ द लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है. और आप कहते हो मल्टीपल चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाउ इज दैट पॉसिबल. ऑथर इज लाइक घटिया बात है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई. लोग बोलने की कोशिश तो कर रहे हैं कि भाई मल्टीपल चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बट उसका इफेक्टिवली मीनिंग ये निकलता है कि कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए. क्योंकि अगर होता तो तुम लोग प्रायोरिटी एक ही चीज को देते, 1000 चीज को नहीं. ठीक है. सो कमिंग टू द ऑप्शंस नाउ, ऑप्शन ए गेट्स थ्रोन आउट बिकॉज इट हैज रिटन द definition has changed too many times. Nahi, Baba. When it comes to the paragraph, we know that it changed one time and the author is not happy with even that one change. How will he even survive if he change the definition too many times? Okay. All right. Coming to option B. Introducing 1400s, word priority started as a singular term, but now it has a plural form. Author का opinion कहाँ गया भाई? Author is not happy with it. Option B is like plain objective statement, not giving us any idea about what the author is thinking. Bye bye. C. Priority, earlier used as a singular term. Oh, bahut badhiya. It has got a plural form in 1900s and a term that might be misleading. Okay, ये वाला जो part है, for some people it might feel like भाई बहुत ही softly बोल दिया. Author तो कितना strongly disapprove कर रहा है. Isn't this too soft, too mild? Yes, I understand. काफी euphemism वाला touch आया है इसके अंदर में. All right, but still it wins the game because it is capturing the fact as well as the author's opinion. Option D gets thrown out. Why? Because it simply says plural form of the word priority. It means nothing of significance. So it is giving us only the second half of the narrative, but first half जो है कि भाई word कब आया था, singular था, बाद में कब plural बनाया, वो पूरा part miss हुआ है. So effectively, option B and D have the same, mistake, have the same gap in there, that they have missed one half of the paragraph. ठीक है? So that is why option C wins the game. I hope that you got it correct. Now let's go solve the second question. Coming to the second question now, very interesting one. The paragraph is a bit larger in size, but बहुत ही easy to understand, straightforward. Author क्या कहता है कि यार चलो, एक बात एक्सेप्ट की जा सकती है कि इजिप्शियन लोगों ने खुद के चैरियट का जो डिजाइन है, रथ बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, उन्होंने इम्प्रूव तो किया यार डिजाइन ऑफ दिस व्हीकल. ठीक है, चलो, ऑल राइट, ओके. ऑथर ने लेकिन कंप्लेंट करने का निगेटिव आउटलुक लग रहा है ऑथर का तो काफी इस पैराग्राफ में. वो इमीडिएटली खुद के कंप्लेंट स्टार्ट कर देता है. यार नहीं, रुक जाओ, इन्होंने बस चेंजेस किए डिजाइन में या फिर जेन्युइनली इजिप्ट के टेरेन के हिसाब से बेहतर बनाया चैरियट को, ये बहुत डिबेटेबल बात है. फॉर एग्जाम्पल, वाई इज ही रेजिंग सो मेनी डाउट. ही सेज कि देख यार, इन्होंने ना कुछ तो चेंजेस किए, लाइक इन द जो एक्सल होता है आपके चैरियट का, उस पे मेटल डाल दिया उन्होंने, विच रिड्यूस फ्रिक्शन. अच्छा ठीक है, चलो. फिर उसके बाद में सम वुडन पार्ट्स देयर वर रिप्लेस्ड विद अगेन मेटल पार्ट्स. तो ऑल राइट, दिस इज आल्सो हेल्पिंग. तो हुआ क्या है दैट द इजिप्शियन चैरियट्स आर नाउ लाइटर एंड फास्टर कंपेयर टू अदर पावर्स इन मिडल ईस्ट. लेकिन अब ऑथर ने वंस अगेन, ऑथर का रोना शुरू हो गया. ऑथर कहता है यार मैं फिर भी खुश नहीं हूं, क्योंकि क्योंकि इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एन एब्सोल्यूट इंप्रूवमेंट इन द चैरियट्स डिजाइन. क्योंकि क्या हुआ है, देयर आर स्टिल क्वेश्चंस कि वेदर द इजिप्शियन चैरियट वाज बेटर या फिर सिंपली डिजाइन फॉर सम अदर प्लेस फॉर अ डिफरेंट पर्पस एंड टेरेन. मतलब कि एनालॉजी में अगर समझते हैं, इमेजिन करो मारुति सुजुकी, वेरी पॉपुलर कंपनी, तो वो कल जाके कहती है कि भाई जो बलेनो ये हमारी कार है,
हमने उसका बेहतर डिजाइन चेंज डिजाइन मॉडल लेकर आया है बाहर। अच्छा ठीक है, तो आप एक्साइट होके शोरूम में देखने जाते हो, यू सी डैट, अच्छा अच्छा ओके, तो तुम लोगों ने गाड़ी फास्टर बनाई है, गाड़ी लाइटर बनाई है, ओके ओके। तो नाउ यू माइट बी वंडरिंग, भाई ये चेंजेस तो इंडिया के टेरेन के लिए हमको चाहिए ही नहीं। फॉर इंडिया व्हाट वी नीड, भाई पॉटहोल अगर वाला रास्ता है तो इट शुड प्रोवाइड गुड शॉकअप, गुड सस्पेंशन, द राइडर इनसाइड शुड नॉट फील द बम्प्स। सो इफ यू हैव मेड द कार फास्टर एंड लाइटर, नाउ इट मेक्स मी वंडर, तुमने ना ये चुपचाप में यूरोप के रास्तों पे भगाने के लिए किया है? सो इफेक्टिवली यू मेड द चैरियट, यू चेंज द डिजाइन ऑफ द कार टू रन इट ऑन यूरोपियन रोड्स। यहाँ पे हमारे सामने जबरदस्ती आप बेच रहे हो बेटर डिजाइन बोल के। सो आई एम नॉट हैप्पी, दिस इज व्हाट द ऑथर इज लाइक। ठीक है, तो निगेटिव एटीट्यूड है ऑथर का रिगार्डिंग द चेंजेस विच इजिप्शियंस डिड। ऑलराइट, तो आंसर ऑफ कोर्स विल बिकम द सेकंड ऑप्शन। कि रिसर्च में हमें एक्सेप्ट तो करते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, इन्होंने ओवरऑल डिजाइन इंप्रूव तो किया है, लेकिन सवाल मैं उठाऊंगा अबाउट द ओवरऑल एफिकेसी ऑफ दिस। एफिकेसी का मीनिंग होता है इफेक्टिवनेस। कि तुमने डिजाइन तो चेंज कर दी, चलो मान लिया, तुमने गाड़ी फास्टर बना दी, लेकिन क्या फास्टर गाड़ी की हमको जरूरत है? इज इट इफेक्टिव ऑन इंडियन रोड? इज द चैरियट इन द फास्टर फॉर्मेट गुड फॉर इजिप्शियन टेरेन? ऑथर इज हिंटिंग कि वो नहीं है खुश इस बात से। ठीक है, so that is why option B becomes the answer. The remaining two three option you should be able to reject very easily. For example, option D is very lame because it's simply focusing on by wooden parts and metal sleeves made the chariot better than Middle Eastern one. First of all, this thing is not quite okay. What we are given is that they were lighter and faster, but lighter and faster होना does not automatically imply कि chariot overall ही better है। पता चला थोड़ा सा भागने के बाद में वो टूट जाता है, मे बी इट्स लाइफ इज ओनली 100 किलोमीटर, फिर कैसा बेटर भाई? ओके, सो एंड अनदर थिंग, यू डू नॉट फोकस ऑन द एग्जाम्पल वाली चीजें इन द समरी। फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने यहाँ पे खुद लिखा है कि व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट दोज मेटल स्लीव्स रिप्लेसिंग दोज वुडन पार्ट्स एंड ऑल, तो ये एग्जाम्पल्स है। इन समरी वी डू नॉट फोकस ऑन एग्जाम्पल, वी फोकस ऑन द ब्रॉडर ओपिनियन दैट इज गोइंग देयर। ठीक है, तो चलो, आई होप दैट यू गॉट दिस आंसर आल्सो करेक्ट। लेट मी नो योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Good question, really good question. छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप। You might be tempted to take this question lightly, seeing that अरे इतना छोटा सा पैराग्राफ, there are what like just 3-4 sentences, छोड़ दूंगा। But be very careful. What does the paragraph say? कि ह्यूमन लाइफ के मॉनेटरी वैल्यू फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वो कैलकुलेशन है विच यू आर यूजिंग टू फिगर आउट की हाउ मच अ ह्यूमन लाइफ इज वर्थ, दोस कैलकुलेशंस आर नॉन स्टॉप चेंजिंग यार। और उसके दम के ऊपर में some other analysis is dependent. There is some other analysis which depends on this calculation of human life का monetary value. क्यों हो रहा है ऐसा, क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ है, why is all this changing? तो ऑथर सेज कि देखो, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से ये दिखता है दैट ह्यूमन लाइफ इज समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, वेरी प्रेशियस, तो क्या होगा, सरकार ना रेगुलेशन लगाएगी। maybe we are discussing about some particular industry, maybe we are particularly discussing about some vertical जिसके around maybe there is contemplation going on कि सरकार should come in, apply some strict tight rules and regulations वगैरह वगैरह। तो अगर पता चल गया कि नहीं ह्यूमन लाइफ तो बहुत प्रेशियस है बॉस, तो फिर सरकार आके आपके ऊपर में बहुत टाइट रेगुलेशन लगा देगी। आपके ऊपर मींस इंडस्ट्री वालों के ऊपर, कंपनीज वालों के ऊपर। और अगर नहीं है ह्यूमन लाइफ एक्सपेंसिव, तो हो भाई बल्ले बल्ले, जो गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन है, दे माइट इवन बी थ्रोन आउट। यू कैन गो टू कोर्ट एंड से गवर्नमेंट निकालो इनको यहाँ से, हमारे ऊपर बहुत इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट going on. By the way, when I say wasted, I mean wasted this, not this. Wasted interest ये नहीं, vested interest this. All right. तो एग्जाम्पल के तौर पे हमें क्या दिया है, देयर इज सम बॉडी नोन एज ईपीए। तो देखो ये कैसे खेल कर रही है ह्यूमन लाइफ की वैल्यू के साथ में। 2004 में इन्होंने चुपचाप में ह्यूमन वैल्यू, जो ह्यूमन लाइफ की जो वैल्यू है उसमें से 8% उड़ा दिया, सो दैट दे कैन अलाउ मोर एयर पोल्यूशन। बहुत टाइट रेगुलेशन अगर रखे तो ऑफकोर्स एवरीबडी विल बी इन प्रॉब्लम, इन द सेंस कंपनी वाले, उनको ज्यादा रूल्स फॉलो करने होंगे, दे विल हैव टू मेक बेटर मशीनरी, बेटर कार्स, व्हाटएवर। बट अगर आप ह्यूमन लाइफ की वैल्यू कम कर दो, तो देन कंपनीज कैन एंजॉय ना, लैक्स मतलब रिलैक्स, easier, lenient. And then they're not stopping this menace here. Once again, in 2008, they are indulging in some shady stuff by not adjusting for inflation. जो हर साल आपने
हर वैल्यू को अपग्रेड करना चाहिए ना, 3, 4, 5% डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमी एंड इट्स इन्फ्लेशन, उन्होंने वो एडजस्टमेंट भी नहीं किया है। ठीक है, सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स। So coming to the options now, step by step evaluate करते हैं। Very likely a lot of people will get this question wrong। पहला क्या कहता है कि आप जब ह्यूमन लाइफ की वैल्यू फिगर आउट कर रहे हो, तो आपकी जो ये मेजरमेंट्स है, जो आपकी कैलकुलेशन है, ये बहुत ही फ्लॉड है, इनहेरेंटली फ्लॉड है। नो मैटर विच फॉर्मूला यू यूज, नो मैटर विच मेथड यू यूज, सब घटिया है। वेट अ मिनट, isn't this a distortion? What is given to us, what we can infer from the paragraph is कि जो तरीका है फिगर आउट करने का मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसमें इंटरफेरेंस पॉसिबल है। सम अनएथिकल पीपल कैन इंटरफेयर एंड decide to tamper with the original values. The original calculations, they may be correct, they might even be fair enough, लेकिन बाहर वाले लोग एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से बिगाड़ सकते हैं आउटकम को। बट ऑप्शन ए क्या बोलता है, वेदर देयर इज आउटसाइड इंटरफेरेंस और नॉट, आई डोंट केयर, द calculations themselves are completely flawed. This is quite wrong. Okay, secondly, there is slight problem with this option because it is not telling us what value are we calculating. Okay, we should be they should be writing here financial value या फिर monetary value. Okay, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ यार ये बात ठीक है। As you can see in all other options, we have this clearly written over here: monetary value, and over here monetary value. ठीक है, बिकॉज जब आप सिंपली वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ लिखते हो ना, तो कुछ भी हो सकता है, कल्चरल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो यू कैन सी दैट देयर आर टू रेड फ्लैग्स विद ऑप्शन ए। सो इवन इफ इट लुक्स अट्रैक्टिव अपॉन फर्स्ट रीडिंग, इट इज एक्चुअली नॉट द आंसर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर कि ईपीए रेगुलेशन की चेंज की वजह से मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ हैज डिक्रीज। पढ़ने के बाद में बहुत अच्छा लगता है ये ऑप्शन। ओके, एंड ट्रू भी है, गलत नहीं है एक्चुअली, टेक्निकली द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ईपीए ने खिलवाड़ किया है कैलकुलेशन के साथ, बट बट एज ऑलवेज, एज आई एम्फसाइज, बॉस, ईपीए इज जस्ट एन एग्जांपल हियर। ठीक है, ओवरऑल जो बात करी जा रही है पैराग्राफ में, इट इज देयर ओवर हियर इन द फर्स्ट टू सेंटेंसेस that when we want to calculate value of human life, monetary value, so calculations can be tampered with, and a lot is at stake based on those calculations, because whether the government stays in some field or gets kicked out, it depends on the outcome, it depends on the result of those calculations. ईपीए तो बस एक मतलब नजारा है एक प्रकार से। ठीक है, so because of that we should not be accepting option B. Still you can, if you are reading from ABCD, so then you can hold it। ये भाई टेक्निकली तो ट्रू है, बट इट इज एम्फसाइजिंग मोर ऑन द एग्जांपल रादर देन द कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। एनीवे, कमिंग टू ऑप्शन सी नाउ, deciding the monetary value of a human life depends on a lot of factors, not all of which are justified। oh okay, this is LOL option। पढ़ते बराबर आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो, ये कुछ अलग ही बातें करता है कि कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। अब उसमें से ना यार कुछ कुछ फैक्टर ठीक नहीं है, मैं ऐसा ऐसा चल रहा है ऑप्शन सी का टोन, विच इज नॉट गुड। कहा बोला है, नोवेयर इज इट इम्प्लाइड दैट देर आर सम रॉन्ग फैक्टर, देर आर सम रॉन्ग कैलकुलेशंस हैपनिंग, कहीं भी लिखा नहीं है। सो ऑप्शन सी इज a very whiny option, it is a very crybaby type option, you can throw it out। Option D naturally wins the game, and it is the answer। What does it say? Calculating the relative monetary value of human life, it does not appear to be a fair process। Once again, this might seem like a euphemistic option। कितने कितने सॉफ्टली बोल दिया भाई इसने। ओहो हो, डज नॉट अपीयर टू बी अ सॉफ्ट प्रोसेस। अरे खुलेआम गाली दो भाई कि कैसे खिलवाड़ चल रहा है कैलकुलेशन के साथ में, डेफिनेटली, बट at least it captures the gist properly। First of all, it mentions monetary value correctly, not any random value, monetary value। And secondly, what is meant by being a fair process? Being fair process मतलब interference नहीं है। कोई भी चीज कैलकुलेट होगी, हमेशा करेक्ट रिजल्ट मिलेगा, किसी का रॉन्गफुल इंटरफेरेंस नहीं है। बट ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। बॉडीज लाइक ईपीए, दे आर स्टेपिंग इन and tampering with the values that are happening। Yes, option D wins the game, and you can comfortably throw out option B because it is emphasizing only on one particular example। ठीक है, तो चलो, आई होप दैट यू गॉट दिस करेक्ट। जिनको मिला है करेक्ट आंसर, बहुत खुशी की बात है, मेरे तरफ से कुछ मीठा खा लीजिए। एंड नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अरे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। पॉज, सॉल्व कर लो, नाउ लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। चार इंपॉर्टेंट बातें बोलिए पैराग्राफ में और कुछ भी नहीं। आई एम गोइंग टू यूज द एग्जांपल ऑफ ओला उबर हियर टू मेक द डिस्कशन सिंपलर। इंस्टेड ऑफ बार बार सेइंग राइड शेयरिंग व्हीकल्स, मैं नाम लूंगा ओला का, ठीक है। नथिंग अगेंस्ट द कंपनी, जस्ट मेक्स द डिस्कशन इजियर। कि ऑथर का बोलना है भाई चार चीजें करना चाहिए हमने विद कंपनीज लाइक ओला। एक, उनके जो नंबर है, जो नंबर ऑफ उनकी गाड़ियां है, उनको तो पहले कम करो यार तुम लोग। एक लिमिट लगाओ उनके ऊपर। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है संख्या, आई एम नॉट हैप्पी विद, ठीक है। जिस तरीके से ट्रेडिशनल टैक्सीज के ऊपर एक लिमिट लगाया था कि इतनी ही टैक्सीज रहेगी, वैसे इनके ऊपर भी लगाओ, ठीक है। दूसरा, व्हाट शुड बी डन, दे शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम सब्सिडाइजिंग फेयर। मतलब जिस तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मूला, एक प्रॉपर रेगुलेशन जो टैक्सीज के ऊपर लगाया गया कि तुम ऐसे ही फेयर्स लोगे, तुम ऐसे ही पैसा चार्ज करोगे कस्टमर से, सेम शुड बी अप्लाइड टू दिस कंपनीज लाइक ओला उबर। So this is let's say point number 2. Okay, wrong place to jot it down. Will interfere with the option discussion। का लिखूं मैं? चलो यहीं पे लिख लेते हैं, थोड़ी खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है। दिस इज नंबर 2, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 3, मस्ट नॉट बी अलाउड टू एस्केप रेगुलेशंस। ओके, या फिर चलो दूसरा पार्ट हाईलाइट करते हैं वहां पे, दे शुड बी मेड टू फॉलो व्हाट, the same laws which are applicable to other traditional taxi companies। मतलब जो दूसरों के ऊपर कानून एप्लीकेबल है वो भी तुम्हारे ऊपर लगना चाहिए। Let's use a highlighter, my bad completely, instead of making a khichdi over there with the pen I should use a highlighter। What are these technical features for them else? ठीक है, ये हो गई बात नंबर 1, ये हो गई बात नंबर 2, ये है तीसरा बात नंबर 3। और फिर वो कहता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट बॉस, लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्स टू शेयर डेटा विद रेगुलेटर्स। तो कितनी इंपॉर्टेंट चार बातें बोल दी है पैसेज में यहाँ पे ऑथर ने हमें। क्या है? बात नंबर 1, इनकी गाड़ियों की संख्या पे लिमिट लगाओ। दूसरा, इनको फ्री के फेयर, फ्री की राइड्स, कम पैसा, ये अलाउ मत करो। तीसरा, जो कानून कायदे दूसरों के ऊपर एप्लीकेबल है इनको भी फोर्स करो फॉलो करने। एंड फोर्थ, they must be forced to share data with the regulators, with सरकार। ओके बॉस, ओके। चार पॉइंट्स, नन ऑफ विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हायरार्की वाइज। चारों इंपॉर्टेंट है, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ऑथर ने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो वी शुड हैव ऑल दीज 4 पॉइंट्स इन अ समरी, and that those can be found only and only in option A। ऑर्डर थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है। डेटा शुड बी फोर्स टू शेयर एंड दे शुड बी रेगुलेटेड, पॉइंट नंबर 3 4 पहले आ गए इसके अंदर में, और सेकंड हाफ में पॉइंट नंबर 1 और 2 बोले हैं। बट एटलीस्ट ऑल द 4 पॉइंट्स आर कवर्ड हियर। इन द रिमेनिंग ऑप्शन बी सी डी, कोई ना कोई एक पॉइंट मिस्ड आउट है वहां पर, ठीक है। So based on this point, you can go ahead, select option A very, very comfortably and eliminate BCD without any second thoughts, without any doubts, ठीक है। चलो, I hope that you got this correct also। If any doubts, let me know in the comment section, drop your score and let's go ahead। Okay, nice question, good, good, good। Overall, what does it say? माइक्रोप्लास्टिक्स, हम जानते हैं यार, ये ना हमारे दुनिया में पानी और टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट जो है वहां पर इन्होंने काफी पोल्यूशन मचा के रखा है। माइक्रोप्लास्टिक्स आर कंटामिनेटिंग हमारा पानी और जमीन। लेकिन बात अब यहाँ पे रुकी नहीं है। अब माइक्रोप्लास्टिक्स हमें सता रहे हैं, कहाँ से? थ्रू एटमॉस्फेयर। बट प्रॉब्लम इज कि हमारा नॉलेज ऑफ क्वांटिटी, कैरेक्टरिस्टिक and mechanism of airborne microplastic, it is very, very, very limited, very scanty। So what is the takeaway from this? It is a well known fact कि microplastics ने धिंगाना करके रखा है when it comes to water and land। But now there is another avenue for worry, air। air के through microplastics are spreading here and there, but unfortunately our knowledge regarding कि कितने दूर तक फैल चुका है एयर के थ्रू, कितनी मात्रा में फैला है और किस तरीके से फैल रहा है, कहाँ पे स्पेसिफिकली एयरबोर्न तरीके से, दैट वी डोंट नो, ठीक है। सो प्रोसीड वेरी केयरफुली विद द ऑप्शंस। क्या लिखा है? ऑप्शन ए, microplastics are omnipresent on earth, though our knowledge of airborne microplastics is inadequate। सेकेंड हाफ ऑफ द ऑप्शन इज वेरी वेरी अप्रोप्रिएट, एकदम अच्छा है, इसमें और कोई गड़बड़ नहीं। गड़बड़ आ गई फर्स्ट में। ओमनी प्रेजेंट का मीनिंग क्या है? दिस इज लाइक टू पावरफुल अ वर्ड बीइंग यूज्ड यार। ओमनी प्रेजेंट मतलब सब तरफ है,
तुम अर्थ के कोई भी कॉर्नर पे चले जाओ, यू गो टू माउंट एवरेस्ट, यू गो टू जुहू चौपाटी इन मुंबई, यू गो टू सऊदी अरेबिया के सैंड ड्यून्स, एवरीवेयर यू विल फाइंड माइक्रोप्लास्टिक। डूड वेट, थोड़ा ज्यादा हो गया। They might be contaminating land and water throughout the world, but does not literally mean कि every single point of the earth में आपको मिल जाएंगे। Omnipresent का मीनिंग क्या है? ये कहीं भी जाओ रहेगा ही रहेगा। Very very powerful word actually। ठीक है, so option A gets bye bye। ठीक है, B, we know very little about microplastics, therefore their behavior and mode of transport remain obscure। Upon first reading, this looks like okay, but delve a little bit into it and you will find out कि नहीं, ऐसा नहीं है। We know a fair bit about microplastic. What do we don't know? Airborne उनका जो सिनेरियो है वो हम नहीं जानते, कि एयर के थ्रू कितने फैल रहे हैं और कैसे फैल रहे हैं, ये हम नहीं जानते। तो दैट एयरबोर्न वाला एंगल इज कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम हियर। जनरलाइज कर रहा है ऑप्शन बी की माइक्रोप्लास्टिक रिलेटेड कुछ ही नहीं पता हमको, भैया ऐसा नहीं है, तो बाय बाय। सी ऑप्शन, दो microplastics are a known terrestrial and aquatic pollutant. Okay, so far so good. Little is known about their potential for pollution through air. Seems very very attractive, but once again this option collapses. Why? क्योंकि little is known about their potential for pollution। नहीं, हम जानते हैं that they can very well pollute through air। हम क्या नहीं जानते कि कितनी हद तक pollute कर दिया है इसने। ओके, so option C का second half is where the word play is happening, where the distortion is coming in। कि अच्छा माइक्रोप्लास्टिक्स कर सकता है क्या एयर के थ्रू पोल्यूट? अरे डाउट है यार, पोटेंशियल लगता तो नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ बैक एंड फोर्थ इज पॉसिबल व्हेन यू फ्रेम इट लाइक दिस। यार ना ज्यादा पता नहीं इनके पोटेंशियल क्या है, भाई पता है क्लियर कट, वी नो दैट दे कैन पोल्यूट द एनवायरनमेंट थ्रू एयर। मैकेनिज्म नहीं पता, what is the modus operandi, what is the way in which this is happening। ठीक है, so option C also अलविदा। option D becomes the natural winner। what does it say? Our knowledge of the extent of airborne microplastic pollution remains scanty। very well written, very well written। knowledge extent specifically of airborne, करेक्ट। extent आप बोलोगे अब ये वर्ड कहां से उठा के लाया, तो ये रहा quantities। ओके, तो क्वांटिटी मतलब हद होती है ना, कितनी मात्रा में, तो एक्सटेंट इज ऑल्सो कितनी मात्रा। तो दिस इज कंप्लीटली फाइन। कमिंग बैक टू द ऑप्शन, इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग अ कॉज ऑफ ग्लोबल कंटेमिनेशन, एकदम प्रॉपरली लिख दिया इसने कि हाँ भाई दुनिया भर में कहर मचा के रखा है, बट एयरबोर्न फॉर्मेट में कितनी हद तक फैल चुका है ये हम नहीं जानते। गुड गुड गुड, दे आर अ ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू as written over here। So yes, global environmental issue, global contamination, completely in line with what is given। ठीक है, so I hope that you got it correct, you did not fall prey to the distortion which are present in the other options। let me know your score whether you got it correct or not, and now let's go to the last question now। very easy, very very doable। let's see what the answer should be। first of all let's discuss what the paragraph says। it says कि देखो यार कुछ तो you know एक एक civic planning का कोई तो तरीका दिख रहा है, ये some new concept that is there on the block, बार्सिलोना सुपर ब्लॉक्स। नाउ आई एम नॉट कंप्लीटली अवेयर व्हाट दिस मींस, ठीक है गूगल कर लेंगे बाद में। तो ऑथर सेज इसके दो फायदे एक्सपेक्टेड थे, क्या? कि एक तो ये रिड्यूस करेगा हार्मफुल एनवायरमेंटल एक्सपोजर, वेरी गुड, मतलब कि पोल्यूशन से आपको बचाएगा, शायद डस्ट डर्ट से बचाएगा, एंड एट द सेम टाइम इट विल हेल्प इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी among the citizens by giving extra space, greenery, blah blah blah। so overall what is the net advantage? the net advantage is substantial health benefit। बिल्कुल सही बात है, कम पोल्यूशन और ज्यादा एक्टिविटी, एनीबॉडीज गेस किसकी हेल्थ इंप्रूव होगी। ठीक है, सो गोइंग अहेड, ऑथर सेज कि यार ये ना थोड़ा सा हमने सिलेक्टिवली एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है ये चीज, अब इसको ना अक्रॉस द एंटायर सिटी तुम इम्प्लीमेंट करो। मतलब कि इस पे से हम थोड़ा सा इन्फरेंस जजमेंट ये निकाल सकते हैं कि बार्सिलोना के कुछ सिलेक्टेड एरियाज में ये एक्सपेरिमेंट हुआ, सीम्स टू बी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, एंड दैट इज व्हाई द ऑथर इज रिकमेंडिंग चलो अब पूरे सिटी पे अप्लाई करो। और ही इज रिकमेंडिंग कि बात यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, बहुत खुशी की बात है, अच्छी चीज है, अच्छा सोल्यूशन है। तो एक काम करो, जो दुनिया भर की पोल्यूटेड सिटीज है ना, फॉर अदर सिटीज दैट आर फेसिंग पोल्यूशन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वहां पर भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। by adopting the Barcelona superblock model, those polluted cities can also, you know, see
benefits with respect to health, C benefits with respect to environmental challenges. All in all, very straightforward narrative. Let's see which option gives us the correct answer. तो correct answer पे जाएंगे सबसे सीधा, ठीक है? तो answer option becomes C. At a Barcelona super block model that can provide health benefits to citizens in polluted cities. Can provide, बहुत ही अच्छा wording लगा, ठीक है? क्योंकि author himself is saying over here similar health benefits they are expected. Implement हो चुका है क्या? नहीं. Do you have solid results in your hand already? Author is making some kind of prediction. हो सकता है. So that हो सकता है वाला angle properly captured through this can. ठीक है. कहाँ पे? Specifically polluted cities. And how? By increasing green space, by increasing physical activity, blah blah blah. करेक्ट. एकदम सही है, एकदम प्रॉपर लिखा है. बचे हुए ऑप्शंस क्यों नहीं है आंसर? मोस्ट प्रोमिनेंटली लेट्स डिस्कस ऑप्शन ए. बहुत ही क्लोज है ये ऑप्शन बट एक्चुअली फेल्स क्योंकि इट इज कमिटिंग द क्राइम ऑफ जनरलाइजेशन. व्हाट डज इट से? दुनिया भर की सिटीज में कर दो यार ये इंप्लीमेंट. वेट अ मिनट. लाइक लिटरली एनी सिटी, एवरी सिटी? वो क्लियर कट लिखा है अदर सिटीज फेसिंग द एनवायरमेंटल इश्यूज. ठीक है जी. तो दैट इज वेयर a slight difference. This is where your fine reading capabilities are tested. First our option is good. Super blocks provide considerable health benefits to citizen. एकदम सही है. But cities the world over वहां पे गड़बड़ हो गई. That is why option A gets bye bye. ठीक है. So I hope that you got this question correct. Let me know your scores. We are done with all the 6 questions. Looking out for 6 on 6 type performance from some of you guys. Let me know your performance. Hit the like and subscribe button, and I'll see you in the next video. Tada, bye bye, take care.